Hello and Assalamu alaikum. Welcome you all in today's class, dear students. As you know that we are reading lesson number 6 of your textbook, and the name of the lesson is A Pod of My Own. Dear students, as you know that we have already read it as two parts. We have learned its two parts. Today we are going to read it as third part, that is from page number 58. It is the fourth paragraph of page number 58. Here I request every student, please pause the video for a while, get your textbooks, keep them in front of you so that I will read out this for you and you have to learn it carefully. I hope you will do it. Now let's start. Won't it get crowded when it stops to pick up other passengers? I asked. No, replied Mom. It won't stop for more passengers, which is nice. We will have some privacy. I smiled at that. To me, it meant I could talk as loud as I wanted, without Mom telling me to simmer down. The speed was perfect and it was more comfortable than any bus. Mom told me that pods are the most environment friendly form of transport since they are battery powered. They are also very efficient. Even with a maximum speed of 40 km, they are quite fast because they don't get stuck in traffic jams. Once an ultrapod departs from its station of origin, it does not stop again until it reaches its destination in congested urban areas. This makes the ultra considerably faster than private cars and much faster than most buses. Mom also told me that she had read in the papers that New Delhi and Amritsar might be the first two cities in India to introduce this form of transport. Many other pods passed by. Pods traveled on elevated tracks in some places and on level ground in others. Since they are computer driven, the chances of an accident are less. The ride took us no more than 5 minutes, and when we got off, Nancy said, "Let us go for another ride." It was a dream ride, and I almost felt like I was on another planet. I only wished we could buy a pod for ourselves. Who knows? Maybe sometime in future I will. Before we will understand today's pod, let me quickly recapitulate what we have learned in already delivered lectures. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया इन दिस लेसन राइटर जो है वो हमें एक नए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहा है, डैट इज़ एपॉड। मैंने आपको बता दिया दिवाली की वैकेशंस थी नैन्सी और राइटर के लिए। ये एक थ्रिलिंग टाइम था जब वो विज़िट कर रहे थे अपने अंकल को जो लंदन में रहता था। इस बार इन्होंने राइटर ने ये मन बना लिया था कि इस बार मैं लंदन आई मैं भी राइड करूँगा, और ख़ासकर उन्हें पॉड में सवारी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो ये हीथ्रो एयरपोर्ट पे जब लैंड करते हैं तो उसके बाद उन्हें उसकी मामा जो होती है वो अपने भाई से कहते हैं कि हम खुद ही यहाँ आपके घर पहुँच जाएंगे, आपको हमें रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है कि उन्हें पॉड में राइड करने का मौका मिलता है। पॉड का जो रियल नेम होता है वो है अर्बन लाइट ट्रांसपोर्ट, या जिसे हम पर्सनल रैपिड ट्रांजिट भी कहते हैं। चूँकि ये हाईटेक व्हीकल होती है, ये कंप्यूटर ड्रिवन गाड़ी है और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और ये जो गाड़ी है ये बैटरी पावर्ड है। तो कल मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में कल राइटर ने हमारे साथ बात की। उसने कहा कि ये हैचबैक कार की तरह है, ये ओब्लॉन्ग इन शेप है और ये एडोरेबल फेस है उसका, जस्ट लाइक ए हनी बी जिसके लॉन्ग ब्लैक आइज होते हैं। तो उसके बाद उसने हमें बता दिया है कि हाउ टू यूज़ इट। उसने बता दिया है जब लोग इसमें चढ़ते हैं वो एक बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद डोर्स क्लोज होते हैं। ये लिटिल पॉड जो होते हैं वो फास्ट होते हैं और ऑलमोस्ट किसी भी किस्म का कोई शोर नहीं करते हैं। तो writer also told us before we board a pod, we need to select destination options on a touch screen computer, and once we made our selections, the computer confirms it.
उसके बाद जब हम उसमें चढ़ जाते हैं तो उसने हमें उसके अंदरून के बारे में बता दिया है, जो पॉड का इंटरनल एरिया होता है उसने बता दिया। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है, मच रूमियर होता है, जिसमें 4 आदमी आराम से बैठ सकते हैं, एंड देयर इज़ एनफ स्पेस फॉर बैगेजेस। तो आज हमें क्या पढ़ना है? तो उसने ये भी हमें बता दिया कि राइटर ने, कि मुझे एक बार ऐसा लगा था कि आई एम इन ए टिनी स्पेस शटल, बिकॉज़ ये इतना कंफर्टेबल था, और इसके सीट्स जो भी थे, सीट्स और बाकी चीज़ें जो वो बहुत ज़्यादा क्लीन थी। आज हमें क्या पढ़ना है? Won't it get crowded when it stops to pick up other passengers? I asked it. There's a question mark. The writer asks a question to his mother, that won't it get crowded? क्या इसमें भीड़ नहीं होगी when it stops to pick up other passengers, जब ये दूसरे पैसेंजर्स को उठाने के लिए रुकेगी, जब ये बाकी पैसेंजर्स इसको बोर्ड करेंगे, तो क्या उस वक्त ये ओवर क्राउडेड नहीं होगी? क्या इसमें भीड़ नहीं होगी? तो उसने क्या बता दिया, मॉम ने क्या जवाब दिया? नो, रिप्लाइड मैम, नहीं ऐसा नहीं होगा। इट वॉन्ट स्टॉप फॉर मोर पैसेंजर्स विच इज़ नाइस। ये और पैसेंजर्स के लिए नहीं रुकेगी। वंस यू हैव बोर्डेड द पॉट इट विल नॉट स्टॉप अंटिल इट विल नॉट रीच टू इट्स डेस्टिनेशन। जो बहुत अच्छा था। वी विल हैव सम प्राइवेसी। उससे क्या होगा, हमें कुछ प्राइवेसी होगी। प्राइवेसी मीन्स टू बी आउट ऑफ द साइट एंड हियरिंग ऑफ पीपल। निजी मालूमात की हिफाजत, यानी आप लोगों की नज़रों से भी, और आप जो भी बात करोगे वो आपके आपस में होगी, कोई और उन बातों को नहीं सुनेगा। तो दैट मीन्स प्राइवेसी। आई स्माइल्ड एट दैट। इस बात पे मुझे हंसी आई। टू मी, मेरे लिए इट मीन, इसका मतलब ये था, आई कुड टॉक एज लाउड एज आई वांटेड। मैं इतनी ज़ोर से बात कर सकती हूँ जितना मैं चाहती हूँ, विदाउट मॉम टेलिंग मी टू सिमर डाउन। अगर मॉम ने मुझे ये नहीं कहा कि अब सिमर डाउन हो जाओ, अब कूल डाउन हो जाओ। सिमर डाउन मीन्स कूल डाउन हो जाना, calm down हो जाना, खामोश हो जाना। The speed was perfect and it was more comfortable than any bus. Writer says इस पॉड की जो स्पीड है वो परफेक्ट है, and it was more comfortable than any bus, और किसी भी बस से ये ज़्यादा कंफर्टेबल था। More comfortable is a comparative degree of adjective. मॉम टोल्ड मी दैट पॉड्स आर द मोस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। मॉम ने मुझसे कह दिया, उसकी मामा ने उससे कह दिया कि पॉड जो है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है। environment friendly form of transport means it doesn't damage the environment. Environment friendly means no damaging to the environment, यानी it doesn't pollute the environment। चूँकि इसमें ये बैटरी पावर्ड है तो इसमें कोई धुआं हुआ निकलता नहीं है, जिससे ये environment फ्रेंडली है। since they are battery powered, ऐसा इसलिए है because they are battery powered, they are also very efficient। ये efficient भी, efficient means काबिल हो जाना, मुहस्सिर हो जाना, being able to produce good results without wasting time और energy, यानी जिसमें हमें कम टाइम और एनर्जी और एक्सपेंसेस कम हो, लेकिन उसके रिजल्ट्स और उसकी प्रोडक्शन होगी वो बेहतर होगी। इवन विथ ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, दे आर क्वाइट फास्ट। अगरचे इसकी सबसे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड जो थी वो 40 किलोमीटर्स पर आवर थी, दे आर क्वाइट फास्ट, फिर भी ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। वाई? बिकॉज दे डोंट गेट स्टक इन ट्रैफिक जैम्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ट्रैफिक जैम्स में नहीं फंसते। जब ट्रैफिक जैम होता है तो उसमें इनको रुकना नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए बिकॉज इट इज़ ओन सेपरेट ट्रैक्स। ये आम रोडों पे नहीं चलती है। इट लाइक जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, इसी तरह से इसकी जो ट्रैक्स है ना वो सेपरेट होते हैं पॉड्स के। ये सेपरेट ट्रैक्स है और उस पे ट्रैफिक ज़्यादा होता नहीं है, और हर एक पॉड का अपना अपना पाथ है। वो अपने चूजन पाथ पे चलते हैं, जो चुने हुए पाथ्स होते हैं उन्हीं पे चलते हैं। दैट इज़ वाई इट डजंट दीज पॉड्स डजंट गेट स्टक इन ट्रैफिक जम्स। वंस एन अल्ट्रा पॉड डिपार्ट्स फ्रॉम its station of origin, it does not stop again until it reaches its destination। इसकी जो सबसे अहम क्वालिटी है वो ये है कि ये जो अर्बन लोकल ट्रांसपोर्ट जो है, अर्बन लाइट ट्रांसपोर्ट पॉड जो होता है, वंस डिपार्ट्स मीन्स रवाना होना है। जब ये अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन से, ओरिजिनल स्टेशन से, ओरिजिन ऑफ स्टेशन जो उसको होता है जहाँ से निकलता है, जब ये वहाँ से रवाना होता है, इट डजंट स्टॉप अगेन अंटिल इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन। इट डजंट स्टॉप, ये नहीं रुकता है अगेन फिर, until तब तक it reaches
रीचेस, जब तक ये नहीं पहुंचता है इट इज डेस्टिनेशन, उसके मंजिल तक. दैट मीन्स वंस इज डिपार्टेड फ्रॉम इट इज station of origin, it doesn't stop until it reaches its destination. In congested urban areas, this makes the ultra considerably faster than private cars. खासकर जो congested मीन्स जो crowded होते हैं, जो भीड़ वाले शहरी इलाके होते हैं, urban मीन्स शहरी इलाके होते हैं, उनमें ये फीचर होना एक पार्ट का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके अपने सेलेक्टेड रूट्स है जहाँ से ये चलती है. दैट मीन्स इट डजंट गेट स्टक इन ट्रैफिक जैम्स. वंस इट डिपार्टेड फ्रॉम इट स्टेशन ऑफ origin, it doesn't stop until it will not reach to its destination. This makes the ultra considerably faster than प्राइवेट cars. इससे क्या होता है, ये अल्ट्रा जो होती है, ये अर्बन लाइट ट्रांसपोर्ट जो होता है, ये फास्टर होती है प्राइवेट कार से भी, एंड मच फास्टर देन मैनी बसेस, और कई बसों से ज़्यादा फास्टर होती है. यहाँ फास्टर है, ये कंपेरेटिव डिग्री है. Mom also told me that she had read in the papers that New Delhi and Amritsar might be the first two cities in India to introduce this form of transport. मॉम ने राइटर से ये भी कह दिया है कि मैंने कहीं पे भी न्यूज़पेपर, कहीं पे शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि न्यू दिल्ली और अमृतसर जो है ये शायद हिंदुस्तान की पहली उन सिटीज़ में से होगा जो इस फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे. क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान में दिस फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज़ नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. But mom told her that she had read somewhere in the papers that might be New Delhi and Amritsar may be the first two cities in India to introduce this form of ट्रांसपोर्ट. इस किस्म के ट्रांसपोर्ट को शायद हिंदुस्तान में इन दो शहरों में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा. मनी अदर पॉड्स स्पॉन्सर्ड बाय, ये अपने सेलेक्टेड रूट से जाते हैं और दूसरे जो रूट्स होते हैं वहाँ से बाकी पॉड्स भी पास हो गए. यानी जिस तरह से गाड़ी में हम चलते हैं तो कई सारी गाड़ियाँ एक साथ रोड पे चलते हैं, हम एक साइड से चल रहे हैं तो वहाँ से दूसरी साइड से बहुत सारे पॉड्स पास होते हैं. इसका भी जो अपना सेलेक्टेड रूट था उसके साथ में जो रूट्स थे वहाँ से कहीं और पॉड्स गुजरे. पॉड्स ट्रैवलड ऑन एलिवेटेड ट्रैक्स इन सम प्लेसेस, कहीं कहीं पे पॉड्स ट्रैवल करते हैं एलिवेटेड ट्रैक्स पे. एलिवेटेड ट्रैक्स मीन्स ऐसे ट्रैक्स जो रेज्ड होते हैं फ्रॉम द ग्राउंड, जो ग्राउंड से कहीं ऊपर की तरफ जाते हैं. एंड सम प्लेसेस ऑन ए लेवल ग्राउंड इन अदर्स, और कहीं जगह ऐसे थे जहाँ पे बिल्कुल ज़मीन की लेवल से ये चले. तो जिस तरह से आपने सिटीज़ में देखा होगा जो पॉड्स फ्लाई ओवर्स होते हैं वो रेज्ड होते हैं फ्रॉम द ग्राउंड, वो ग्राउंड से ऊपर होते हैं. तो कहीं कहीं पे गाड़ी जब फ्लाई ओवर पे चलती है तो वो ग्राउंड से ऊपर जो रास्ता बनाया गया है वहाँ से चलते हैं, और कहीं कहीं पे यही गाड़ियाँ सीधे ज़मीन के साथ में चलते हैं. सेम इज़ द केस विद द पॉड्स. समटाइम्स it runs on elevated tracks, that means it runs on the tracks that are raised from the ground, and sometimes it runs on level grounds in others. Since they are computer driven, the chances of an accident are less. Obviously when we have a when we have a vehicle which is driven by a computer, that means there are less chances of accident. क्योंकि इनका मैनुअल ड्राइवर होता ही नहीं है, पहले ही इसमें ये कंप्यूटर ड्रिवन होता है, पहले ही इसमें सेट प्रोग्राम्स होते हैं, सेट रूट्स होते हैं, और इसके जो एक्सीडेंट्स के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं. द राइड टुक अस नो मोर देन 5 मिनट्स. इस राइड में सिर्फ हमें 5 मिनट लगे. विद इन 5 मिनट्स वी रीच टू आवर डेस्टिनेशन. एंड व्हेन वी गॉट अप, और जब हम वहाँ से इस गाड़ी से नीचे उतरे, यानी जो बोर्ड्स में हमने बोर्ड किया था उससे जब हम उतरे, नैन्सी ने मुझसे कहा लेट अस गो फॉर अनदर राइड, चलो हम और एक सवारी के लिए चले जाते हैं. ऐसा उसने इसलिए कहा बिकॉज शी लाइकड इट्स राइड, उसकी राइड बहुत ज़्यादा पसंद आई. इट वॉज अ ड्रीम राइड, ये एक ड्रीम राइड थी हमारे लिए. एंड आई ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक आई वॉज ऑन अनदर प्लानट, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी दूसरे प्लानट पे हूँ, मैं अर्थ पे नहीं किसी और प्लानट पे इस वक्त सफ़र कर रहा हूँ. जैसे उसने ऊपर ही कहा था कि जैसे उसने हमने लेसन में पढ़ा था, उसने कहा कि द राइटर फेल्ट दैट शी वायर इन ए टीनी स्पेस शटल. तो आई ओनली विशड वी वुड बाय ए पॉड फॉर आवर सेल्स, और उसकी ये तमन्ना है, शी डिजायर्स टू हैव ए टू ओन ए पॉड फॉर हर सेल्फ. तो ये कह रही है कि मुझे विश थी कि काश मैं अपने लिए पॉड खरीद सके, हम अपने लिए कोई पॉड, खुद का अपना पॉड खरीद सके. हु नोस, कौन जानता है, मे बी सम टाइम इन फ्यूचर, शायद आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में कभी ऐसा होगा कि हम अपना पॉड खरीदेंगे. आई विल, शायद मैं खरीद सकूँ. शी डिज़ायर्स, शी विशेस, वो उसकी ये तमन्ना है. दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेसन.
इसके साथ मैं कुछ होमवर्क भी असाइन करूँगा और कुछ स्टडी मटेरियल भी अपलोड करूँगा। होप यू विल रेस्पॉन्ड विद इन द टाइम। थैंक यू।